عمران خان پر حملے کے خلاف ایف آئی آر سے پنجاب حکومت نے روکا۔ آئی جی فیصل شاہکار کا سپریم کورٹ کے سامنے بیان۔ چیف جسٹس کا آئی جی کو عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ لاہور رجسٹری میں پولیس افسران کے تبادلوں میں سیاسی مداخلت کے خلاف ویڈیو لنک پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے رانا طاہر سلیم ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس، آئی جی فیصل شاہکار اور درخواست گزار کی طرف سے شہزاد شوکت ایڈوکیٹ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ درخواست میں پولیس افسران کے تقرر و تبادلے میں سیاسی مداخلت ختم کرنے کی استدعا کی گئی۔ چیف جسٹس نے آئی جی سے کہا کہ ایک قومی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا۔ آئی جی نے جواب دیا، حملے کے متعلق ابھی تک کوئی شکایت درج نہیں کروائی گئی۔ آئی جی نے مزید بتایا کہ وزیر اعلیٰ کا درخواست کے مواد پر کچھ تحفظات تھے۔ چیف جسٹس نے آئی جی سے کہا، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، ابھی از خود نوٹس نہیں لے رہے، اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم مداخلت کریں گے۔ پولیس افسر کسی کی رائے پر اپنا کام نہیں روک سکتے، آپ کو 24 گھنٹے دے رہے ہیں، مقدمہ درج کریں ورنہ ہم از خود نوٹس لیں گے۔ آئی جی نے بتایا کہ پولیس افسران کے تقرر و تبادلے میں سیاسی مداخلت کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم دیکھ لیں گے۔ عدالت نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سی سی پی او کا وفاق کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ غلام محمود ڈوگر معطلی کے خلاف عدالت چلے گئے۔ ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے منظور۔ جسٹس مزمل اختر شبیر آج سماعت کریں گے۔ غلام محمود ڈوگر نے وفاق، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا ہے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے معطلی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وفاق کے نوٹیفیکیشن کا جواب دینے پر عجلت میں 5 نومبر کو عہدے سے معطل کر دیا۔ وفاقی حکومت ہانہ گرین ٹاؤن میں 2 وفاقی وزراء کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کے الزامات پر انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پنجاب حکومت رولز آف بزنس کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کو سی سی پی او کے تقرر و تبادلوں کا اختیار حاصل ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وفاقی حکومت درخواست گزار کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے صوبائی خود مختاری میں مداخلت کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت وفاق کے عہدے سے معطلی اور ٹرانسفر کے نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے کر کل عدم کیے جائیں۔ مزید استدعا کی گئی کہ درخواست کے حتمی فیصلے تک تبادلے اور معطلی کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکا جائے۔ شاہ محمود قریشی کے نازیبا الفاظ وکلا برادری پولیس کی حمایت میں کھڑی ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کا شاہ محمود قریشی کے وردی سے متعلق بیان پر سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ وکلا نے پولیس کی وردی کے بارے میں پی ٹی آئی رہنما کے بیان کی مذمت کی ہے۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار سردار اکبر علی ڈوگر نے کہا ہے کہ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ پولیس ہماری جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے۔ شہداء پولیس کی وردیوں کو گالی دینا افسوسناک ہے۔ اداروں پہ تنقید کرنا اور نام لے کے تنقید کرنا اور اس حد تک ان کی تضلیل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جس قدر مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پروونشل گورنمنٹ آپ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی ایف آئی آر لانچ کروائیں، نہ کہ آپ وردی کے حوالے سے، ادارے کے حوالے سے اور اس طرح کی تضلیل کریں اور اس طرح کی آپ میڈیا ٹاک کریں۔ ممبر پنجاب بار کونسل محمد یار چاولی کا کہنا ہے کہ اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے، اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ پولیس کی وردی کے متعلق ایسا بیان کسی طور پر مناسب نہیں۔ ادارے ہمارے ہیں، ہم نے انہیں مضبوط کرنا ہے، اداروں کو کام ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر کسی ایک بندے کا فالٹ ہے تو اس کی وجہ سے پورے کے پورے ادارے کو اگر ہم شروع کر دیں تو یہ غلط بات ہے۔ رانا عبدالستار ایڈوکیٹ نے کہا کہ پولیس کے جوانوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت پولیس کی وردی کی توہین کا نوٹس لے۔ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے، کیونکہ وہ وردی پہ لعنت کر رہے ہیں۔ وردی میں ہمیں شہداء ملے ہیں، اسی وردی نے ہمارے اوپر خون دیا ہے، یہ وردی ہماری پروٹیکشن ہے، یہ وردی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ملکی اداروں کو مضبوط کیا جائے، اسے کمزور کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شاہکام فلائی اوور کے ادھورے منصوبے کا افتتاح، ملتان روڈ اور ڈیفنس جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، شہریوں کو مشکلات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محض کارکردگی دکھانے کے لیے 18 اکتوبر کو افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ اور ایل ڈی اے کا لاہوریوں کے ساتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام پر انوکھا مذاق سامنے آیا ہے۔ شاہکام فلائی اوور کے ادھورے منصوبے کا افتتاح تو کر دیا گیا، لیکن فلائی اوور کے نیچے تمام راستے تاحال بند ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے 18 اکتوبر کو منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ منصوبہ گزشتہ سال جنوری فروری میں عثمان بزدار نے شروع کروایا تھا، جو رواں سال مارچ میں مکمل ہونا تھا، تاہم ناقص پلاننگ کے باعث 7 ماہ تاخیر کا شکار ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے تاخیر کی وجوہات جاننے کے بجائے ادھورے منصوبے کا ہی افتتاح کر دیا۔ منصوبہ
ताहाल अधूरा है। रास्ते न होने की वजह से शहरियों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। बैरिया टाउन से फ्लाईओवर से कबल मुल्तान रोड और डिफेंस रोड पर जाने के लिए रास्ता मौजूद नहीं। एवेन्यू 1 से डिफेंस रोड पर जाने के लिए स्लिप रोड ताहाल टूट फूट का शिकार है, जबकि LDA की जानिब से ज़ेरे तामीर रास्तों के मुतालिक आगाही बोर्ड आवेजा न किए जाने के बायस शहरी परेशान होने लगे हैं। LDA 4 अरब 23 करोड़ रुपए के अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह करवा कर वजीर आला से दाद समेट कर बैठ गया है। महकमे खजाना ने समनाबाद अंडरपास पर फौरी काम शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीम्स के लिए अरबों रुपए का बजट मंजूर कर लिया है। महकमा खजाना पंजाब ने समनाबाद अंडरपास पर फौरी काम शुरू करने की हिदायत करते हुए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसी तरह महकमा खजाना ने जड़ावाला लाहौर रोड के लिए भी 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। ये सड़क सगिया बाईपास बेगम कोट से बनाई जाएगी। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 25वां इजलास हुआ। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 17 अरब 18 करोड़ 9 लाख 8 हजार रुपए के बजट की मंजूरी दे दी गई। बाबू साबू इंटरचेंज से रिंग रोड तक बंद रोड की बहाली के साथ गुलशन रावी टी जंक्शन पर अंडरपास के लिए 4 अरब 95 करोड़ 93 लाख 17 हजार रुपए भी मंजूर कर लिए गए। LDA ने बेदिया रोड अंडरपास मंसूबे के रवा माली साल में शामिल करने के लिए वजीर आला को समरी अरसाल कर दी। हुकूमत पंजाब से शेयरिंग फंड के तहत 1 अरब 43 करोड़ रुपए देने की भी इस्तदा की गई है। DG LDA आमिर अहमद खान की जानिब से भेजी गई समरी में DHA एडमिनिस्ट्रेशन की फंडिंग शेयरिंग पर आमादगी का हवाला भी दिया गया है। LDA बेदिया रोड पर रिंग रोड के नीचे से अंडरपास गुजारना चाहता है। बेदिया DHA इंटरचेंज पर गोल चक्कर के 2 हिस्से करके दरमियान से अंडरपास की बैरल गुजारी जाएगी। अंडरपास की तामीर से रोजाना 1 लाख व्हीकल्स को फायदा पहुँचने का तखमीना लगाया गया है। सोलर कनेक्शन सार्फिन के लिए इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर लगवाना लाजिम करार। सिस्टम पर सोलर सिस्टम की तनसीब न होने से ट्रांसफार्मर्स की खराबी मामूल बन गई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कवानीन के बरक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सोलर सिस्टम की तनसीब हो रही है, जिसकी वजह से लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर खराबियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। ज़राए ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सोलर सिस्टम की तनसीब ट्रांसफार्मर्स के जलने का बाइस बनने लगी है। कवानीन के मुताबिक लेस्को ट्रांसफार्मर पर 30% तक सोलर कनेक्शन लगा सकती है। ताहम कंपनी के मुख्तलिफ सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर्स के लोड से जायद कनेक्शन लगाए गए हैं। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत कनेक्शन की तनसीब की वजह से तफसीली निजाम में नस्ब ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। कवानीन में सार्फिन को सोलर कनेक्शन के लिए लोड खत्म होने पर इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर लगवाना लाजमी करार दिया गया है। ताहम लेस्को में इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर्स की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर ही बोझ डालने का सिलसिला जारी है। LPG सिलेंडर्स की फरोख्त का मंसूबा नाकाम। महकमे सुई गैस ने 1 लाख सिलेंडर मंगवाए, 1 हफ्ते में सिर्फ 250 ही फरोख्त हो सके। सार्फिन का खरीदारी से इनकार, कहते हैं कि सिलेंडर की 7500 फीस भरें या LNG भरवाने के पैसे अदा करें। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से LPG सिलेंडर फरोख्त करने का मामला संगीन होता जा रहा है। सार्फिन ने LPG सिलेंडर खरीदने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। ज़राए ने बताया कि बुकिंग के बाद टीमें सिलेंडर लेकर घरों में पहुंची तो सार्फिन ने इनकार कर दिया है। 1 हफ्ते के दौरान सिर्फ 250 सार्फिन को सिलेंडर फरोख्त किए जा सके। बैक वक्त सिक्योरिटी और LPG की कीमत की अदायगी की वजह से सार्फिन सिलेंडर नहीं ले रहे। LPG सिलेंडर की खरीदारी के लिए 7500 सिक्योरिटी अदा करना होगी। फिटिंग चार्जेस और LPG की कीमत सिक्योरिटी के अलावा अदा करना होगी। IG पंजाब का सूबाई हुकूमत से काम करने से माजरत का मामला। IG पंजाब ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जवाब आने तक तमाम सरकारी सरगर्मियाँ महदूद कर दी और मीटिंग्स का शेड्यूल ना रखने की हदायत कर दी। IG पंजाब फैसला शाहकार ने गुज़िश्ता रोज सूबाई हुकूमत के साथ काम से माजरत कर ली थी और तबादले की दरख्वास्त की थी। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि IG पंजाब को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जवाब का इंतजार है। तब तक तमाम सरकारी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गई हैं। दोपहर के औकात में अदालत से वापसी पर थोड़ी देर दफ्तर रुके, फिर घर रवाना हो गए और उनका तमाम स्टाफ भी दफ्तर से रवाना हो गया। दफ्तर में सिर्फ अदालत के FIR के इंदराज के हुक्म पर मुतल्लिका अफसरान से मुशावरत की। इस मौका पर कायम मुकाम DPO वजीराबाद गजनफर अली शाह भी CPO में मौजूद थे। मुतल्लिका स्टाफ को हिदायत जारी की है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जवाब तक किसी किस्म की सरकारी मीटिंग न रखी जाए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से अगर इनकार किया गया तो IG पंजाब छुट्टी पर रवाना हो जाएंगे और सीनियर एडिशनल IG को बतौर IG पंजाब का चार्ज देकर काम चलाया जाएगा। PTI के दौरे हुकूमत में पुलिस IGs मुश्किलात का शिकार। मनपसंद तयनाती की ये 8 IGs में कोई भी 1 साल का अरसा मुकम्मल न कर सका। मौजूदा IG फैसल शाहकार ने 3 माह 13 दिन बाद शदीद मुदाखलत की वजह से काम करने से माजरत कर ली।
पंजाब में सियासी मुदाखलत की वजह से कोई भी आईजी टिक कर काम नहीं कर सका। मनपसंद तैनातियों के बावजूद भी मुसलसल दफ्तरी अमूर में मुदाखलत की वजह से आईजीज का पंजाब में काम करने से मुआवजत करने का रुझान सामने आ रहा है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई भी आईजी 1 साल का अरसा तैनाती कायम न रख सका। मौजूदा आईजी फैसल शाहकार 3 माह 13 रोज आईजी पंजाब तैनाती के बाद पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करने से मुआवजत कर ली है। सबसे ज्यादा इनाम गनी 11 माह 29 दिन आईजी पंजाब रहे। सबसे कम मोहम्मद ताहिर 1 माह 4 दिन आईजी पंजाब रहे। कलीम इमाम 2 माह 28 दिन आईजी पंजाब रहे। अमजद जावेद सलीमी 6 माह 2 दिन आईजी पंजाब रहे। आरिफ नवाज 7 माह 11 दिन आईजी पंजाब रहे। राव सरदार अली 10 माह आईजी पंजाब रहे। शेब दस्तगीर 10 माह आईजी पंजाब तैनात रहे। पंजाब हुकूमत की जानिब से आला अफसरान के तकर्रुर, तबादलों और दीगर अमूर में मुदाखलत पर जो अफसर मुजाहमत करता है, हुकूमत उसको तब्दील करती रही है। आमदन से ज़ायद असासों का केस वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की नैब इंक्वायरी ख़त्म करने की इस्तदा मंजूर। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त मंजूर की। नैब तरमीमी कानून का दोबारा जायजा लेगा। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असजद जावेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त की समाअत की। राना सनाउल्लाह के वकील अमजद परवेज नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर फैसल रजा बुखारी पेश हुए। नैब की जानिब से तहरीरी जवाब पेश किया गया कि तरमीमी कानून के बाद नैब मामले का दोबारा जायजा लेगा। अमजद परवेज ने कहा, दरखास्त गुजार की प्रॉपर्टी नैब तरमीमी कानून की जद में भी नहीं आती। नैब ने मनकूला और गैर मनकूला जायदाद बनाने के इल्जाम में दरखास्त गुजार को पकड़ा। नैब ने ये असासे मनशियात की कमाई से बनाने का इल्जाम आयद किया। मामला अगर मनशियात कोर्ट में हो तो नैब इस मामले पर इंक्वायरी नहीं कर सकता। मामले की इंक्वायरी से कबल नारकोटिक्स अदालत से इजाजत लेना जरूरी था। अदालत से नैब इन्वेस्टिगेशन के इकदाम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। इख्तियारात से तजावुज़ और मुख्तलिफ कंपनीज को लाइसेंस और परमिट्स जारी करने का मामला, जबकि साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अपनी गिरफ्तारी के डर से एहतसाब अदालत से जमानत के लिए रजू कर लिया। अदालत ने नैब को 22 नवंबर तक उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी से रोक दिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें बताया गया कि नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम में छानबीन कर रहा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई सियासी इंतकाम के तौर पर की जा रही है। दरख्वास्त में निशानदेही की गई कि नैब ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ और मुख्तलिफ कंपनियों को लाइसेंस और परमिट्स जारी करने की इंक्वायरी शुरू कर रखी है। नैब ने 30 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस भिजवाया था। गिरफ्तारी का खर्चा है जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने 5 लाख के जमानती मशरूम को गए हुए उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत 22 नवंबर तक मंजूर कर ली और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला की दरख्वास्त जमानत पर नैब से जवाब मांग लिया। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 22 नवंबर को होगी। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली रजिस्ट्री ब्रांचेज के मुलाजमीन पर मौत के साए मंडलाने लगे। डीसी ऑफिस के खस्ता हाल रिकॉर्ड रूम की इमारत नाकाबिल इस्तेमाल करार दिए जाने के बावजूद खाली ना हो सकी। इमारत की तामीर के लिए 8 करोड़ 50 लाख की ग्रांट को डीसी ऑफिस की तज़ीन व आराइश पर खर्च करने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों की अरबों रुपए की जायदादों का रिकॉर्ड दांव पर लगा दिया गया। समनाबाद टाउन, रावी टाउन और दाता गंजबख्श टाउन की रजिस्ट्री ब्रांचेस खस्ता हाल इमारतों में मौजूद हैं। खस्ता हाल इमारतों में सेंट्रल रिकॉर्ड रूम और HVC ब्रांच के दफातर भी हैं। स्टाफ एसोसिएशन डीसी ऑफिस ने रिकॉर्ड रूम की खस्ता हाल इमारत की तामीर के लिए तीसरी मरतबा दरख्वास्त डीसी लाहौर को जमा करा दी। सेक्रेटरी वेलफेयर स्टाफ एसोसिएशन के मुताबिक 100 साल से जायद पुरानी इमारत अपनी मियाद पूरी कर चुकी है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड रूम की खस्ता हाल इमारत को खतरनाक डिक्लेयर कर रखा है। 10 साल से इसको बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने जो है डेंजरस डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना तो इसको सील किया गया है, ना इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, बल्कि इसको जो उन्होंने रेनोवेशन में डाल दिया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली कहते हैं रिकॉर्ड रूम की इमारत के लिए फंड्स मिलते ही टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा। डीसी ऑफिस की खतरनाक करार दी गई इमारत किसी भी वक्त मुनहदम हो सकती है, जो बड़े माली और जानी नुकसान का पेश खैमा भी साबित हो सकती है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।